हम आज आपके साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का टॉपिक करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में आपको आप देख रहे हैं कि फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हुए हैं ये और इसके आंसर भी, और इसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट द वेरिएंस एनालिसिस। बिफोर स्टार्टिंग the multiple choice question, here is the question: what is the meaning of variance analysis? The variance analysis means the difference between the standard costing and actual costing। जब हम वास्तविक लागत और अनुमानित लागत के बीच अंतर की गणना करते हैं तो वो वेरिएंस एनालिसिस कहा जाता है। और यू नो देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ वेरिएंस एनालिसिस। नंबर फर्स्ट इज ए मटेरियल वेरिएंस, सेकंड इज ए लेबर वेरिएंस एंड थर्ड इज ए ओवरहेड वेरिएंस। तो आइए आज फिलहाल इसके जो थ्योरेटिकल टॉपिक था और न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो हमने पहले किए थे और आज हम इसके करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन: द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि आपकी वास्तविक लागत और अनुमानित लागत के बीच के अंतर को कहते हैं प्रॉफिट लॉस नन ऑफ अबव वेरिएंस। तो हियर इज द आंसर इज वेरिएंस। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। सो फर्स्ट आंसर इज वेरिएंस। एंड सेकंड क्वेश्चन is standard costing is a process of calculation of standard cost, actual cost, variances, all of the above. So here is the answer is all of above, because in standard costing, standard cost, actual cost and variance, these are all involved. So answer is D. And third question is standards are prepared for production activity only, purchase activity only, sales activity only, none of the above. So here is the answer: production activity only. Standard cost are is the cost the standards are prepared for production activity only. So first वो answer is a. And again question is a material cost variance is the difference between the standard cost and actual cost, standard material price and actual material price. And fixed material cost and variable cost and none of the above. तो आप देख रहे हैं कि आंसर इज ए कि मटेरियल कोस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस इज स्टैंडर्ड मटेरियल एंड एक्चुअल मटेरियल। तो यू नो वेरी वेल दैट द डिफरेंस इन एक्चुअल कोस्ट एंड standard cost is the difference of material cost variance. And now is number 5. Synonym of material usage variance is material quantity, material efficiency, both A and B and none of these. Synonym of material usage variance used for material quantity variance and material efficiency variance. So answer is the C, both A and B. And next question is standard costing and budgeting control are interdepartment of each other, independent to each other, interrelated unit each other, and here is a non-related unit for each other.
So answer is a interrelated unit each other. Standard costing and budgeted control are interrelated unit each other. And now is the next question. Standard time is determined after studying property the following point: average performance of previous year, factor affecting future performance, ideal time and wastage, all of the above. तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड आफ्टर स्टडिंग property of the following: average performance of previous year, factor affecting future performance, and ideal time and wage. These are all involved in standard time. So answer is D, all of the above. And next question is, if the actual cost is less than the standard cost, the variance is deemed to be. If the actual cost इज लेस देन द स्टैंडर्ड कोस्ट, तो नेचुरल सी बात है जब हमारी एक्चुअल कोस्ट कम होती है स्टैंडर्ड कोस्ट से, इट्स कॉल्ड बी फेवरेबल. तो यहाँ पर आंसर हमारा फेवरेबल आएगा, यानी कि ए. अनफेवरेबल तब आएगा जब स्टैंडर्ड ज़्यादा हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कोस्ट इज बेस्ड ऑन गेस वर्क, टेक्निकल estimate, forecasting, none of the. So is right answer is the standard cost is based on technical estimate. तो ये एक टेक्निकल एस्टिमेट होता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टैंडर्ड कोस्ट इज ए टेंडर प्राइस. नो, टेंडर प्राइस इज नॉट ए स्टैंडर्ड कोस्ट. एस्टिमेट कोस्ट इज नॉट ए स्टैंडर्ड कोस्ट. प्री डिटरमाइंड कोस्ट, हाँ, प्री डिटरमाइंड कोस्ट इज द स्टैंडर्ड कोस्ट. जो कोस्ट हमने अनुमान पहले लगा के रखा वही हमारी प्री डिटरमाइंड कोस्ट या स्टैंडर्ड कोस्ट कहलाती है. सेम वेरिएबल कोस्ट इज नॉट ए आंसर. सो राइट आंसर इज ए प्री डिटरमाइंड कोस्ट. एंड नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम कैन नॉट बी अप्लाइड अंडर in stable market condition without the application of budget control where price of material are fluctuating, all of the above. तो standard cost system can not be applied, ये इन तीनों दशाओं में अप्लाई नहीं हो सकता. अंडर इन स्टेबल मार्केट कंडीशन, जहाँ मार्केट की कंडीशन में फ्लक्चुएशन होता है, without application of budget control, and where price of materials are fluctuating. तो तीनों कंडीशन में ये नहीं. तो आंसर इज राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मटीरियल यील्ड वेरिएंस इज मटीरियल यील्ड वेरिएंस इज आल्सो कॉल्ड सब यूसेज वेरिएंस. Material price, no, material price variance is not a yield variance. Material mix variance also is not a material variance. And sub-uses variance. And sub-uses variance is the name of material yield variance. So we can say that material yield variance is also called material mix variance. मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस. तो अगेन एक बार फिर देखें स्टूडेंट, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज आल्सो कॉल्ड एज सब यूसेज वेरिएंस. तो सब यूसेज वेरिएंस को मटेरियल यील्ड वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं. तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा ए. एंड नाउ इज द मटेरियल प्राइस वेरिएंस. सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में मटेरियल स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस होगा और मल्टीप्लाई आपका होगा एक्चुअल क्वांटिटी. सो राइट आंसर इज ए बी. राइट आंसर इज ए बी. मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी. तो स्टूडेंट ये आप याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ़ एक्चुअल क्वांटिटी 22 kg, एक्चुअल प्राइस 2 रुपीज़ 70 पैसे पर केजी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 kg, स्टैंडर्ड प्राइस 2.5 per kg. Find out the value of the material cost variance. And you know the formula of material cost variance equal to standard quantity multiply standard price minus actual quantity multiply actual price. And standard quantity value is 20 and standard price is 2.5. So 20 multiply 2.5 minus actual quantity is 22 and actual price 2.7. So difference between 20 multiply 2.5 20 and 20 multiply 2.5 equal to 50 or 22 multiply 2.7 59.4. So difference is answer देखते हैं 9.4 आएगा. तो 9.5 पहला ही आंसर है. 9.4 ₹9.40. तो यहाँ हम कह सकते हैं इसका आंसर ₹9.40 है. तो आंसर ए इज़ राइट आंसर, क्योंकि सेकंड आंसर ₹4.40, फिर ₹5, फिर ₹1.60. सो राइट आंसर इज ए. एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मटेरियल यूसेज वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग will be. Material usage variance from the following will be: standard quantity 100 kg, standard price 2 rupees per kg, actual quantity 130 kg and actual price is 3 rupees per kg. और आप जानते हैं इन्होंने पूछा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस. मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फार्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुना स्टैंडर्ड प्राइस. और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके सामने 100 है और एक्चुअल क्वांटिटी 130 है. इन दोनों का डिफरेंस 30 हो जाएगा. और एक्चुअल प्राइस है 2 रुपीज़ 30 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 60. तो आंसर हो जाएगा 60. और यहाँ पर 60 आंसर दिया है. ए 90 है, बी नहीं, सी भी नहीं और डी आंसर इज 60. तो राइट आंसर इज ए डी. तो स्टूडेंट देखा आपने, अगर आपके यहाँ पर फार्मूले क्लियर हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको MCQ करने में नहीं होगी. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे और इन छोटे क्वेश्चनों में निश्चित रूप से आपको केवल कैलकुलेशन बहुत छोटी छोटी करनी होगी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16. XYZ लिमिटेड परचेज 13,700 kg ऑफ मटेरियल फॉर 43,840. XY लिमिटेड परचेज 13,700 kg of material for 43,800. The material price variance 2,740 favorable. The estimate price, the standard price kg will be. यहाँ पर बताया गया है कि 13,700 kg मटेरियल 43,840 में ख़रीदा गया और मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवर में इतना है. तो आपको निकालना है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी. आप देखिए इसमें आप फार्मूला लगाएंगे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस गुना एक्चुअल क्वांटिटी, चूँकि हमें दिया है मटेरियल प्राइस वेरिएंस. तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला लगेगा SP माइनस AP गुना AQ. और इसके बाद इसकी वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दी हुई है. आप डिफरेंसेस करेंगे, ये बाद की कैलकुलेशन दी है. स्टैंडर्ड प्राइस आपके स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस आप डिवाइडेड करके निकाल लेंगे. यहाँ पर एक्चुअल प्राइस 43,840 डिवाइड बाई 13,700 डिवाइडेड करके यहाँ पर आप प्राइस निकालेंगे. उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी आप पे है, एक्चुअल क्वांटिटी का फार्मूला रख के
ये हमने यहाँ कैलकुलेशन दी है 13,700 SP माइनस 43,840 इक्वल टू 2,740। तो स्टैंडर्ड प्राइस इसके बाद डिवाइड करके निकलेगा 3 रुपये 40 पैसे आपका आंसर आएगा। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे से आप जूम मीटिंग पर जो अगला लेक्चर आप लोगों का होगा उसमें डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर 3 रुपये 40 पैसे आया है और ये 3 रुपये 40 पैसे आंसर आपका है यहाँ पर ए। तो ए इज़ द राइट आंसर। एंड अगेन 17 क्वेश्चन, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो यहाँ पर इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है, केवल आंसर में आपको इसका फार्मूला याद रखना है। और फार्मूला है इसका राइट आंसर इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल बटे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो राइट आंसर इज ए। आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द स्टैंडर्ड यील्ड द वेरिएंस इज कॉल्ड। ध्यान रखिए, जब एक्चुअल यील्ड कम होगा, हमारा अनुमान जो कार्य का होगा उससे कम कार्य, ये एक्चुअल वाला कम होगा स्टैंडर्ड से, तो निश्चित रूप से हमारा आंसर एडवर्स में आएगा। तो व्हेन एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द स्टैंडर्ड यील्ड देन द वेरिएंस इज कैलकुलेटेड फेवरेबल नॉट एंड B adverse. Yes, B is the right answer. B is the right answer. तो स्टूडेंट आप इन सभी क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहेंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो में से डिस्कस भी करेंगे। नाउ इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आप लोगों के लिए है, आप इसको सोल्व कीजिएगा। और सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट विल बी। यहाँ पूरा एक क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मिक्सचर और एक्चुअल मिक्सचर, इसको आप करके देखिए। अगर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है तो ये मेरे से आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम बताइए, ये मैं सोल्व करके अगली वीडियो में इसका सॉल्व करके इसकी स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा आप कॉलेज ग्रुप में। तो इसको सोल्व कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है, एक्स का भी और वाई का भी, और स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, तो इसको आप सोल्व करके देखिएगा। जहाँ इसकी प्रॉब्लम आती है वहाँ मेरे से डिस्कस कीजिएगा। तो इसके आंसर की चर्चा करने में भी कोई फ़िलहाल ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे ये बताइए, मैं सोल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ स्टैंडर्ड आउटपुट इज़ 440 kg, यदि हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट 440 kg है और एक्चुअल आउटपुट 500 kg है और स्टैंडर्ड कॉस्ट 4400 है, तो यील्ड वेरिएंस बताइए। तो यहाँ पर मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड गुना स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये मैंने इसमें कैलकुलेट करके दी है। एक्चुअल यील्ड आप देख रहे हैं 500 kg है और माइनस स्टैंडर्ड यील्ड 440 kg है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें पता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 4400 दी है और स्टैंडर्ड आउटपुट 440 kg है, तो डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा 10 रुपीज़। सो नाउ इज़ तीनों वैल्यू हमारे पास उपलब्ध हैं, एक्चुअल यील्ड भी, स्टैंडर्ड यील्ड भी और स्टैंडर्ड कॉस्ट भी। तो 500 माइनस 440 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 10, 600 is a favorable. So here is the answer, 600 answer is the D. So 600 एडवर्स हमारा आंसर होगा। एंड नेक्स्ट, यहाँ तक ये क्वेश्चन आपके आगे मटेरियल वेरिएंस के, इससे आगे ये दो क्वेश्चन आपके लेबर वेरिएंस के हैं
और नॉर्मल रूप से मैं आपको लेबर वेरिएंस अगली वीडियो में लेबर वेरिएंस ही कराऊंगा। और इस क्वेश्चनों में से अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो मुझे बता दीजिए और मैं अगली वीडियो में वो क्वेश्चन भी ले लूँगा। फिलहाल फार्मूला ऑफ लेबर टाइम वेरिएंस ही यहाँ सीख लेबर टाइम फार्मूला ऑफ लेबर टाइम वेरिएंस इज, तो सिंपल है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, ये फार्मूला है। तो ए इज़ द फार्मूला। और इफ़ गोज डायरेक्ट वेजेज 28,080, स्टैंडर्ड आवर इज 8,640 एंड स्टैंडर्ड रेट पर आवर लेबर कॉस्ट वेरिएंस विल बी। सिंपल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट। आप देख रहे इफ़ ग्रॉस डायरेक्ट वेजेस 28,080 है एक्चुअल लेबर कॉस्ट और स्टैंडर्ड आवर 8,640 और स्टैंडर्ड रेट भी दिया हुआ है इन्होंने, स्टैंडर्ड रेट रुपी यहाँ देख लीजिए ₹3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 8,640 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28,080, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आंसर एडवर्स में आएगा 2,160। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, मेन रूप से मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट वीडियो में लेबर वेरिएंस के सारे क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ स्टार्ट हुआ है ये, तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो डिस्कस कीजिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगली वीडियो जिस भी टॉपिक पे आप चाहते होंगे वो मुझे टॉपिक का नाम भेजिए, मैं उस पर बना के भेज दूँगा। और ये क्वेश्चन जो भी आपके सामने है मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, अतः इनकी तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।